I wish to welcome all of you here on this very, very happy occasion of the annual prize distribution ceremony of the essay competition that we had to celebrate the Hindi Rashtra Bhasha Divas, which was on the 14th of September. A lot of health conscious people are worried about calories, and Mr. Lalu Joshi has done something very, very unique. He's introduced healthy chocolates. Chocolates with probiotics and calcium, and I think that's a really unique thing to happen in India. It's getting launched, and he's also got the gifts for the special guest here. We can probably sneak a few for ourselves. We also have Mr. MG because the felicitation of all our guests will happen once our chairperson joins us. That's what happens when you become a teacher. You get into dramatic monologues. Each में by saying, समझ में आ रहा है ना? Have you understood everything? And I will slowly introduce you to a lot more people here who are driving the Mumbai chapter. So we run our pharma company, that's Pranada Biopharma, and it's since 2014, and we specialized into some unique products. So we have given some unique products to the domestic market, and also we export our products into more than 12 countries now. We have all range of the products: tablet, capsule, liquid syrups, creams, supplements. So entire basket is there with us. We basically the concept was कई बार हम देखें फुटपाथ पर लोग पड़े रहते हैं, तो आपका ये हृदय विदारक घटना है। सॉरी, मैं ज़्यादा क्लिष्ट हिंदी तो नहीं बोल रहा हूँ, एकदम दिल को दहला देने वाली घटना होती है। कई बार देखते हैं कि कैसे, स्पेशली जब मैं पेडियाट्रिक कैंसर दिखता हूँ कई बार, या कई बहुत बुजुर्ग पुरुष या महिलाएं हैं, शारीरिक रूप से अशक्त हैं, दो तरह के कष्ट से पार कर रहे हैं। एक तो कैंसर और दूसरा शारीरिक अशक्तता, और कोई छोटा बच्चा है जो पीडियाट्रिक कैंसर जिसको हम बोलते हैं, तो काफ़ी हृदय विदारक करने को तो नहीं होगा, लेकिन नेग्लिजिबल जरूर हो सकता है। मुझे ऐसी आशा है, ऐसी मुझे उम्मीद है। I think there are a lot of things which the pandemic has taught us, and one of the things that the pandemic has taught us is caring for self and caring for others. So if you see me constantly spraying the microphone with sanitizer and wiping the microphone with a tissue paper and making rustling sounds, please forgive me for that. To Tata Memorial Hospital, and yes, I was also part of the cancer webinar that we had, and it was such an eye opener, because one of the questions that early in the morning, and for the other doctor, Shailesh Srikhande, who was in US, it was late in the night. धन्यवाद शामली मैडम जी। दोस्तों, आर्मर्ड व्हीकल्स की अगर हम बात करें तो कॉमन लैंग्वेज में इसे हम बुलेट प्रूफ गाड़ी कह देते हैं। सर आज के बाद मिल जाएंगे आपके पास? पक्का बिल्कुल आएंगे सर। नमस्कार। Our special guest for the evening, Bhajan Samrat, Shri Anup Jalota ji is with us. A warm welcome to you, sir, on behalf of PRCI, PSUs, and many organizations from across India who participated in this competition. There was a lot of transparency. So once
all these essays came to Jafri Sahab. He passed them down to me. अनूप जी, आपको ये भी बता दें, कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं भारत के कुछ हिस्सों में बसे हुए हैं, जैसे कि अहमदाबाद में है, हैदराबाद में, वो नहीं आ पाए बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक कंडीशंस, बट वी आर वेरी प्राउड दैट वी डिड दिस फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इट वाज अ डिसेंट सक्सेस. पर मैं ये बताना चाहती हूँ अनूप जी कि जब आप गा रहे थे ना, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, फॉर मी I thought I was Meera and I thought I was looking for Krishna. And believe me, every performance that I heard, whether it was during a Durga Puja festival, and we are so happy to have you here with us. And let me tell you that each of the people who are sitting beside you are stalwarts in their own field. Some of them belong to vehicles which are for protection of people. Some of the chocolates. Dr. Srikhande is here, who comes from Tata Memorial Hospital, curing cancer patients. We have somebody here who makes health food, and he's been ensuring that he has conceptualized this beautiful thing called Ahar Veda. We have someone from the Nuclear Power Corporation heading the department. Each person here is a stalwart, and I would request our Jafri Sahab. He's got that charisma. He's the. I was very lucky. मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैंने लाइव रिकॉर्डिंग अभी सुन के आया हूँ. और ऐसा गाना कि मैं सोच, अगर आंख बंद करके सोचूं तो मेरे को लगे नहीं कि ये सर गा रहे हैं, बट वो गाना एकदम चटपटा गाना, और सुनोगे आप तो आपको भी समझ में आएगा कि किस टाइप का गाना. लेकिन इतने मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आधा घंटा और सुन लूं वहीं बैठ के. तो मैं समझ सकता हूँ आपकी बात कि आप क्या चाह रहे हैं, बट आज हम इधर आए हैं और मेरे आपके साथ साथ हर शख्स जो है वो एक सितारा है, और मुझे बड़ी खुशी है कि आप फिर भी हमारे लिए टाइम निकाल सके सर. नॉर्मली रिकॉर्डिंग वगैरह के बाद में थोड़ा वो हो जाता है. पब्लिक रिलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, मैं आपको एक बुके पेश करना चाहूँगा. मैंने ये सोचा कि हम अपनी सर्विसेज चाइल्डहुड कैंसर पेशेंट्स को कैसे दे सकते हैं, और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का हिस्सा होने के नाते मेरे लिए ये काम बहुत ही आसान था. हमारे डॉक्टर्स हैं जो इस तरह के कामों में हम लोगों को बहुत ही एनकरेज करते रहते हैं, उत्साहित करते रहते हैं. तो जैसे आप लोगों ने वेबिनार किया था, ऐसे डॉक्टर बनावनी को भी लेके मैंने 4 वेबिनार किए थे चाइल्डहुड कैंसर पे. ऑल ओवर इंडिया के जो भी डिस्ट्रिक्ट के लायंस क्लब्स के बेसिकली डिसीज थे, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से चाइल्डहुड कैंसर के उन लोगों के लिए. तो एक छोटा सा ये बुकलेट है, और आज यहाँ पर इतने बड़े बड़े लोग, इतने महानुभाव और अपने अपनी विधाओं के माहिर लोग, प्रतिष्ठित लोग यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं. तो मैंने ये सोचा कि मैं भी
इसका कुछ फायदा उठाओ और इस बुकलेट को आज यहाँ पर आप लोगों के हाथों से, और विशेषकर हमारे जो मुख्य अतिथि हैं आदरणीय श्री पद्मश्री आदरणीय अनूप जलोटा सर जी के हाथों से ये बुकलेट यहाँ पर विमोचन किया जाए। थैंक यू। आई टेक रियली मैं चाहूंगा लालू जी has from Biopharma. He has just come and started a research on this, and his chocolates have just been launched. आज के अन्नदाता और इसी बादान पे खरा उतरने वाली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है हमारे बीच, मसगांव डॉग शिपिंग बिल्डिंग यार्ड। स्पेशल लोगों से मैं मिला हूँ, मुझे बहुत ही खुशी हुई है। ऐसे ऐसे काम किए गए हैं जिसके बारे में हम सबको सच में जानना चाहिए और उसकी इज्जत करनी चाहिए। एक और नई जानकारी आज यहाँ मिली कि सिखों में राठौड़ भी होते हैं। ये भी जानकारी, बल्कि एक जानकारी और आपको दूं कि सिखों में गांधी भी होते हैं। आई हैव मेट फ्यू सिख पीपल। एक बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं लंदन में, उनका नाम है मंजीत सिंह गांधी। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितनी चीज़ें हैं जो हम लोग जानते नहीं हैं, और हमने आज यहाँ बुलाया है, बहुत अच्छा लगा। और जाफरी साहब को सबसे पहले शुक्रिया, और हमारे जो प्रीतम शर्मा हैं PR, प्रीतम शर्मा मेरा और लता मंगेशकर जी का PR करते हैं, 2 लोगों की प्रमोशन पब्लिसिटी सब संभालते हैं। तो आज जो भी हम लोगों का नाम हुआ है इनके कारण हुआ है, तो इनको हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। जाफरी साहब। Director Sahab, thank you very much. Pleasure for gracing this evening. And मंच पे बैठे सारे अतिथिगण, सारे जन यहाँ जो आए हैं, सबको स्वागत करता हूँ जाफरी सर की तरफ से और PRCI की तरफ से। और बस 2 बातें बोलना चाहूँगा। एक है कि आज हवा, मिट्टी और पानी, बस ये 3 चीज ठीक नहीं है, बाकी सब कुछ डेवलप हो रहा है और ये बर्बाद हो रहा है। हमारा फाउंडेशन जो है, लाइफ का फाउंडेशन खराब होके हम बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। बस मैं चाहता हूँ कि डेवलपमेंट रुक जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन इस चीज को अगर हम डेवलप नहीं कर पाएंगे तो अगला नस्ल बचेगा नहीं। तो जितना आप लोग के पास जान है इस पे लगा दीजिए, और ये काम परमात्मा का जो देन है, वो ये 3 चीज देकर हमको इस दुनिया में भेजा है, और हम उसी को खराब कर रहे हैं, उसी को बर्बाद कर रहे हैं, और हम खुश रहना चाहते हैं, आबाद होना चाहते हैं। नहीं हो सकता है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग सब लोग आंखें खोलकर, मैं इस प्रोग्राम का नाम होश रखा हूँ क्योंकि हम बेहोशी की हालत में हैं। आंखों से दिख रहा है हमको, और समझ इस फाउंडेशन को ठीक कीजिए। बाकी सारी बातें बाद में हो सकती है, लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि आप लोग सब लोग मिलकर जितना हो सकता है इसमें काम कीजिए और इसको एक चेंज लाने में हमारी मदद कीजिए। थैंक यू सो मच। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने
लगी ऐसी लागी लगन, कोई रोके मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, वो तो गली गली हरी गुनगान लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरी गुन गाने लगी, जुगन चली मीरा रानी दीवानी, कहाने लगी ऐसी लागी लगन मीरा। सब कुछ तो कहा जा चुका है, कुछ बाकी नहीं बचा है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आज कुछ ऐसे विशेष लोगों से मैं मिला हूं जिनके साथ में बैठा हूं, जो अपने अपने क्षेत्र के महारथी हैं, बहुत रिस्पेक्टेड हैं और देश के लिए हेल्थ, डिफेंस और सिक्योरिटी, इन सब चीज़ों के लिए इतना ज़रूरी काम कर रहे हैं जिसकी सख्त ज़रूरत है हमारे देश को। आज आपको पता ही है कि सारे संसार में कैसे आतंकवाद फैल रहा है, कुछ भी हो जाए वो अपने काम में लगे रहते हैं। तो आज ऐसे लोगों के साथ मैं मिला हूँ जो लोग यही चीज़ें रोकने के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं और उनको मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, नमन करता हूँ। आज यहाँ आके ये भी अच्छा लगा कि मेरे हाथों जो लोग आज कोरोना ने सबको लॉकडाउन में कैसे गिरफ्तार करके रखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये इस तरह का जब रॉन्ग रीजंस के लिए कोई टाइम मिलता है उसका सदुपयोग कर लेना चाहिए, उसको एडवांटेज बना लेना चाहिए। वो कैसे बन सकता है कि हम लोग घर में ही हैं ज़्यादातर, तो घर में हैं तो थोड़ा अपना हेल्थ का ध्यान रखें, योगा वगैरह करें, मेडिटेशन करें। हमने तो खूब रियाज किया इस 8-9 महीने और सच ये है कि मेरी सिंगिंग इम्प्रूव हो गई, मेरा खर्च का रियाज अच्छा हुआ, तो सरगम अच्छी हो गई क्योंकि खूब रियाज किया। साथ ही साथ हमने मेडिटेशन वगैरह किया तो और कंसंट्रेशन बढ़ गया काम करने में। कितने कवि बन गए, कितने सिंगर बन गए, सब लोग यही सब करते। तो बहुत अच्छी बात है कि ये नई नई जो प्रतिभा जो छुपी हुई थी सबके अंदर वो निकली है। मेरे साथ ये हुआ कि लॉकडाउन से पहले मैं एवरेज करीब 2-3 है, 10 है, 12 है, तो 2,500-3 हज़ार लोगों को एवरेज मैं रोज़ गाना सुनाता था। लेकिन लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है तब से मैं 3 लाख लोगों को रोज़ गाना सुनाता हूँ, क्योंकि मैं किसी ना किसी से रोज़ 4-5 जुड़ा रहता हूँ लाइव ऑन कॉन्सर्ट जो होते हैं हम लोग के, ऑनलाइन कॉन्सर्ट होते हैं, कितनी मीटिंग्स होती हैं, उनसे सब जुड़े हुए थे। अभी भी हम स्टूडियो में भी कर रहे थे, वहाँ भी जुड़े हुए थे, योगी आदित्यनाथ जी के साथ जुड़े हुए थे उसमें हम। जब आपका खेला किए हैं आप मेरी जिंदगी के साथ, 100 आदमी के साथ 100 दर्द लग गए मेरी जिंदगी आपको। जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, जुल्फे हैं जैसे कांधे पे बादल घिरे हुए, आंखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की धुन वो जरा चौधरी का चांद चेहरा है जैसे झील में खिलता हुआ कभी हुई गजल, जाने बहार तुम किसी शायर का ख्वाब पिया मोरी रंग दे चुनरिया, शाम पिया मोरी
रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया हो छूटे, धोबिया धोए चाहे ये सारी उमरिया, शाम पिया मोरी रंग दे क्या बात है, क्या बात है। लाल ना रंगाऊं मैं, हरी ना रंगाऊं, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, शाम पिया मोरी रंग दे क्या चुनरिया। बात है, क्या बात है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, प्रभु चरणन में लागी नजरिया, शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, 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 रंग दे चुनरिया। अन्ना, आपके बारे में मैं क्या बोलूं। अन्नदाता आज के आप और आपका ये स्माइलिंग फेस हमें हमेशा इंकरेज करता है कि और बेटर करें और अच्छा करें। सर, इनकी एक लगन है इनकी भी कि मैं कुछ अच्छा करूं और कुछ करते जाऊं। एक बार ये मेरे पास आए और बोले कि मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट्स के लिए कुछ अच्छा करूं और उनको बुलाऊं, समझाऊं और फिर सब नाश्ता वास्ता सब कराऊं। तो मैंने बोला ठीक है करा। मैंने सोचा कराएंगे ये 200 400 500 लोग ऐसा कर देंगे। सुबह सुबह आने आए 5:30 बजे। सर मैं सरप्राइज हो गया जब मैं वहाँ स्टेज पे गया तो नीचे पूरा शिवाजी पार्क भरा पड़ा था स्टूडेंट से। 15 से 20 हजार बच्चे। उन्होंने पूरे बॉम्बे के कॉलेज में सुबह से शाम तक डेली जाके उनको बुलाया, रिक्वेस्ट किया, वो सब आए। तो मैं सर आपके बारे में और कुछ नहीं बोल सकता। थैंक यू केरकर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर रिमूविंग टाइम। Please tell Mr. Singhal all the best for his recovery because he was supposed to come. He's not well. He said, I would today when we go to sleep, there will be nothing else but your voice in our ears till morning. I am sure about it. Yes. So thank you very much, sir. After a hectic schedule of recording, you made us you took the time, came here, song. I know your heart is such that you would like, you would have liked to sing more songs, but we don't want, to trouble you much more with this. So let's all enjoy the food, and thank you very much for joining me and being here. And I would request sir to be the other members also. So first you take this whole photo. So that's the way it is. We are together. टाटा इन्होंने कहा भाभी जी घर पर है, इतना बोल के छोड़ दिया। बट मस्ट टेल कौन है मेरे हस्बैंड? कितने लोग हैं उसमें, है ना? सो तिवारी जी जो है भाभी जी घर पर है, मेरे हस्बैंड है। ऐसे क्या बोल रहे हो, कितने लोग हस्बैंड? इतने सारे मेल एक्टर्स हैं ना। 25 years I worked in Actor as a scientific assistant, and then I left. I'm taking BRS and now I'm here. Now I'm honored first of all today to be here with you all, Anup ji and everybody. All are I'm blessed to have a very important announcement. That is the most important. Very 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 important announcement that after knowing all his contribution towards society, जैसे आपने कहा था कि हर एक जो मौका मिलता है वो blessed person है. So he's a blessed one to really serve everyone and take care of people. Otherwise लोग अपने घर के खाली करते हैं. So on behalf of Baptista Peace University, we have decided to confer honor him with the doctorate award in humanities. Patients are Chief Justice Bode Saab also. So like that he has got so many people, and he was invited for giving a lecture to all Chief Justices in Delhi. So he is that man. मदद करते हैं लोगों को समझाने के लिए कि आपको दवाई के साथ दवाई चाहिए। एक बैलेंस, आज मैं बोलूँगा कि दवाई नहीं चाहिए, नहीं हो सकता, क्योंकि आज आपका एक फ्रैक्चर हो गया है या एक हड्डी टूटा है तो आपको डॉक्टर के पास जाके बैलेंस पे लेके आना है। उसके बाद जो शरीर काम करता है उस शरीर को मदद है। तो बैलेंस इज द की। ओल्ड जमाने की बात कर रहा हूँ, 40 साल पहले, 50 साल, कैंसर उन्हीं को होता था जो बहुत बुजुर्ग थे या बहुत नेगेटिव जीते थे। तंबाकू मत खाओ, गुटखा मत खाओ तो कैंसर हो जाएगा। आज मेरे पास जो आते हैं वो जैन, वेजिटेरियन, यंग पीपल, तो उनको कैंसर हो रहा है।
तो कहाँ से कैंसर हो रहा है ये देखा, तो मैंने देखा केमिकल से। तो केमिकल देखा तो इंसान की मति ऐसी हो गई कि उन लोग ने अपनी सहूलियत के लिए बहुत सारी चीजें बनाई, लेकिन हर चीज मुर्दा, और कुदरत जो बनाता है वो हर चीज जिंदा। तो केमिकल उस तरफ पहुंच गई, और उस तरफ पहुंच के आज खाना, आज हवा, आज मिट्टी, सब चीज में केमिकल। तो मैंने बोला कि मैं एक एक को निवारण क्यों करूं, कारण कोई क्यों नहीं निकालूं। तो मैंने ये प्रण लिया कि हवा, पानी और मिट्टी को किसी भी तरीके से साफ करेंगे, और एक पीएल डाला, और पीएल डाल के एक मुहिम चला रहा हूँ। आप लोग सबका साथ चाहिए इसके लिए कि अगली जनरेशन को अगर आपको बचाना है, तो अगर हमने अब भी नहीं लाए तो आगे बहुत। वही मैं सर के साथ दिवाली 2 साल मनाया उधर टाटा मेमोरियल में। 10 साल से छोटे बच्चे पहले 1000 थे, अब 2000 3000 हो गए। तो अगर ये डेवलपमेंट है तो उसको किस तरह से हम डेवलपमेंट करेंगे। और आप लोग सब जो हमारे इस फैमिली के मेंबर्स हैं, इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि हम लोग मिलके इस मुहिम को कंप्लीट करें। लेकिन इसके लिए मैं इस प्रोग्राम का नाम होश रखा, होश। हाँ, क्योंकि हम बेहोश ही क्या सब पता है हमको, लेकिन जागरूक नहीं हो रहे। आज अगर थाली साफ है तब जाके उसमें अच्छा खाना खा सकते हैं। आज थाली गंदा हो गया, कैसे चीज खाएंगे, कैसा खाना खाएंगे। तो बस इसके लिए मैंने होश में लाने के लिए मैंने ये प्रोग्राम रखा सबको, और मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर, क्योंकि बाकी सब डेवलपमेंट आगे 500 साल नहीं होगा, तो भी हम ये डेवलपमेंट में आगे 500 साल जी सकते। लेकिन अगर हवा, मिट्टी, पानी जिस हिसाब से आज जहरीला हो रहा है, अगर उसको अगले 2 डिकेड में हमने बराबर नहीं किया तो हम अगला नस्ल को बचा नहीं पाएंगे। श्योर। तो इसके लिए ये मुहिम मैं चला रहा हूँ। जिस तरीके से जो आप लोग के पास तन मन से आप लोग इसको साथ दीजिए, और फाउंडेशन का डिस्ट्रक्शन सर, अगर ये नहीं रहा सर, वैल्यूज नहीं रहा, फाउंडेशन नहीं रहा, क्या डेवलपमेंट का हम बात करें। सो आई फील सर, हम लोग को पहला इसको डेवलप करने का, अपना कंपाउंड, अपने कंपाउंड में जितना झाड़ लगा सकते हैं लगाइए, अपना फुटपाथ साफ करके, अपना बिल्डिंग साफ करके, सर धरती साफ हो जाएगी। अभी सर मैं 2 दिन पहले ही बॉम्बे आया हूँ। हम लोग तकरीबन 2-2.5 महीने से मनाली में थे। लॉकडाउन पूरा फैमिली हम लोग वहाँ पर शिफ्ट किए थे। वहाँ पे जो हमने सर सब्जियाँ खाई, मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, फार्म से खुद गोभी तोड़ के, पालक तोड़ के, हम उसमें जो स्वाद था वो हमको इधर खाने में नहीं मिलता सर। बस वही स्वाद लाना है सर, स्वाद खाने में और स्वाद सोच में, दोनों में आना चाहिए। खाली सर, लेकिन अन्न अच्छा हो जाएगा, मन अच्छा हो जाएगा, पक्का। तो हमको बस जो हम खाते हैं ऑर्गेनिक बोल के नहीं बोलना है सर, फूड बोलना है जो हमारे माँ बाप खाते थे सर 30 साल पहले। ऑर्गेनिक बोल के उसको ब्रांडिंग करके महंगा करके उसको रीचेबल नहीं करो। बहुत सारे जो एक्सपर्ट न्यूट्रिशनिस्ट उनका ये मानना है, बोले एक सिंपल फार्मूला आपको अप्लाई करना है, जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स करते थे ना, बस वही उसी को फॉलो करो सर। अगर वो ग्रैंड पेरेंट देसी घी खाते तो आप खाओ, कोई टेंशन। अन्न में और कर्म में, दोनों में वो करो। कर्म में भी ऐसे ही सर, कितना जबान का कीमत था सर, आज है ये जबान का कीमत, कितना जबान का कीमत। एक शब्द दे दिया, पुष्ट के उसको शब्द को रखते थे, वो ही नहीं पुष्ट के रखते थे। आज लिया कल नहीं है वो शब्द। तो कर्म से और अन्न से, दोनों से हमको स्वच्छ होना है सर, तब जाके स्वच्छ भारत होगा। फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ मस्कान और एक राइटर भेजा। ओके, अरे यार